ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذی اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین علیہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات معزز سامعین، مالک کائنات، آپ سب حضرات کا اس مقام مقدس پہ تشریف لانا، بانیان کا یہ اہتمام کرنا، ہماری نوکری مولا امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ فرجک شریف اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار عالم مسافران عراق وطن پر واپس تشریف لے آئے، کربلا کی خاکیں زائل ہو جائیں، زنگل و تالے اتر جائیں، ماتم کے نشان ختم ہو جائیں، غم کے آثار ختم ہو جائیں، غم ایسے ختم ہو جائے جیسے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ میں روزانہ کہتا ہوں ان دعاؤں سے گھبرایا نہ کریں، یہ عجل فرج آل محمد کا ترجمہ ہے۔ اللہم کن لولیک جو عربی میں دعا مانگی جاتی ہے، اسی کا یہ ترجمہ، یہ دعائیں ہیں۔ سمجھ آئی؟ کوئی نئی دعا نہیں ہے۔ خوشی کی دعا تو مانگتے ہیں مگر پتہ نہیں ہے کہ خوشی کیسی ہوگی، تو ان دعاؤں میں خوشیوں کی کیفیات بتائی جا رہی ہیں۔ تو ملکہ خاتون جنت، ملکہ الامین پاک بی بی صلوات اللہ علیہ کے صلی اللہ محمد علیہ رشک جنت صحن اقدس میں آج 18 چاند طلوع ہو جائیں۔ فاتح شام بی بی صلوات اللہ علیہ اپنے ہر خوبصورت بھائی کی خوبصورت رفتار پر دل بھر کے درود پڑھیں۔ اور اپنے نازک ہاتھوں کے ساتھ 18 بنی ہاشم کو خود خوشیوں کے تاج پہنائیں۔ بخت کا سورج نصف و نہار پہ چمکے، لازوال شاہی مولا امام زمانہ کی ہو جائے۔ ملکہ روم بی بی صلوات اللہ علیہ آخری حجت کو مسکراتا ہوا دیکھ کر اس بی بی کے سارے غم ختم ہو جائیں، اور معصومہ بی بی پاک بابا کے سینہ اطہر کو رونق بخشیں۔ ملکہ ہجر بی بی پاک بھائی کی بارات کو سجا ہوا دیکھیں، اور لاہور والی ملکہ بی بی اپنے بیٹوں کو سہرا باندھے ہوئے دیکھیں۔ وہ وقت قریب آ جائے جب اس بی بی کے 6 لال اس پاک بی بی کے مزار پر آئیں اور کہیں اماں ہمارا قائم آ گیا، ہماری آبادی کے موسم آ گئے، اماں ہم آپ کو لینے آئے ہیں، اماں حق کا بول بالا ہو گیا، عدل و انصاف قائم ہو گیا، ظلم و جور ختم ہو گیا، اور رجعت ہو رہی ہے۔ میرا مالک اس پاک خاندان کی خوشیاں جلدی دکھا، اور میرا مالک یہ دشمن کا کلا کما ہو، دشمن تباہ و برباد ہو، دشمن نیست و نابود ہو۔
दुश्मन ज़लील व ख्वार हो, दुश्मन की तबाही बर्बादी फनाही हो, पाक घर की आबादी हो, पाक ख़ानदान की आबादी के लिए, पाक हस्तियों की रजत के लिए बावाज़े बुलंद सलवात। ये रजत के मौजू पर आगा नसीम अब्बास साहब का एक बहुत अच्छा जुमला, इस जुमले का सवाब अल्लाह उनकी रूह को पहुँचाए। वो कहा करते थे कि मिसाल देते थे कि गंदम के दाने को ज़मीन में दबो दिया जाए ना, तो वो चंद अरसा गैब रहता है। जब गैबत के बाद निकलता है तो अकेला नहीं आता, 12-14 को लेकर आता है। कुतब गैबत में मिलता है। और ये मौला का ज़हूर एक होती है अमूमी अदालत, एक होती है खसूसी अदालत। इन सदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत कहते हैं ना, एक अदालत होती है जहाँ आम मुकदमे चले जाते हैं, एक होती है जहाँ ख़ास मुकदमे चलते हैं। तो मौला का ज़हूर जो है ये ख़ास लोगों की ख़ास अदालत है। क़यामत तो अदालत अमूमी होगी जहाँ हर छोटे बड़े को इंसाफ दिया जाएगा, हर किसी के साथ हिसाब व किताब होगा। मौला का ज़हूर जो है ये ख़ास लोगों की ख़ास अदालत होगी। और अदालत वही होती है जिसमें मुजरिम भी हो और मुद्दई भी हो। अल्लामा बाक़िर मजलसी हक़्क़ुल यकीन में लिखते हैं कि जब मालिक तशरीफ़ लाएंगे, ये इसको उठाया भी जाता है, मैं इशारे में आऊँगा कि जब मालिक आएंगे सबसे पहले मुकदमा सैयदा कौनैन खातून जन्नत का चलेगा। बीवी तशरीफ़ लाएंगी और कहेंगी कि मालिक हमारा ये मुकदमा है, इस पर पूछ। तो अल्लामा बाक़िर मजलसी हक़्क़ुल यकीन में लिखते हैं कि मौला आकर कब्रों से निकालेंगे, और फिर इन्हें लटकाएंगे, दरख्त सब्ज़ हो जाएंगे। फिर जो कच्चे अकीदे को हो गए ऐसे ही हम कहते रहे ये तो मोजिज़ नुमा है। मौला फरमाएंगे कौन है इनको मोजिज़ नुमा कहने वाला, आओ तुम भी इनकी लाइन में आ जाओ। समझ आए? तो ये रजत अमीर कायनात की रजत भी है और जनाब रिसालत मुआब की रजत भी है। दरूद पढ़ें बावाज़े बुलंद। वो मौसम आएंगे दुनिया खुशियों से भरेगी, वो पाक ख़ानदान इनका मुंतकिम आएगा, एक एक का इंतकाम लेगा। जनाब यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपने मुजरिमीन को रिहा करवाया था तो किसी ने पूछा यूसुफ नबी आपने इंतकाम नहीं लेना? तो जनाब यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम का जुमला कि अल्लाह ने मुझे मुंतकिम बनाकर नहीं भेजा, दलील है कि मुंतकिम कोई और ज़ात है जो इंतकाम लेने आएंगे। हाँ, और कुरान में बार बार है, इंशाल्लाह कल फिर मैं एक आधी आयत का तर्जुमा बयान करूँगा और हवाला भी दूँगा, जिसमें मालिक ने 300 आयतें हैं जिनमें अल्लाह ने वादे किए हैं। वो वादे अभी पूरे नहीं हुए, वो वादे उस वक्त पूरे होंगे जब हमारे मालिक इस दुनिया में तशरीफ़ ले आएंगे और अल्लाह के किए हुए वादे पूरे होंगे। इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, बेशक मुजरिमीन से इंतकाम लिया जाएगा। समझ आई ना? तो मेरे मोहतरम सामिन मालिक के कायनात आपका इस मुकद्दस मकाम पर तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दरूद पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाह बस मशहूर व मारूफ आयत पढ़िए, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अतात करो अल्लाह की, अतात करो रसूल की और उलिल अम्र की। ये थोड़ा सा एक और वजाहत करना चाहता हूँ। किसी ने कहा जी अल्लामा साहब आते हैं स्याह कपड़ों में, अमामा भी स्याह, साफा भी स्याह, ये सब कुछ स्याह लिबास होता है, तो ये स्याह लिबास पहनना जायज़ नहीं है, तो वो और लिबास में नहीं आते। इसका जवाब देता जाऊँ कि दुनियावी शौकीनी के तौर पर अगर स्याह लिबास पहना जाए तो नाजायज़ है, हराम है। समझ आई ना? अगर दुनियावी फैशन के तौर पर स्याह लिबास पहना जाए तो नाजायज़ है, मगर अगर बकसदे अज़ा पहना जाए तो जायज़ है।
इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दरोमदार नियत पर होता है। मैं बाक़सद अज़ा पहनता हूँ और 2.25 महीने पहनता हूँ, उसके बाद फिर नहीं पहनता। समझ आई ना? तो मेरे मोहतरम सामीन, और मैंने खुद 1985 में मैं ईरान ज़ियारत के लिए गया था, तो मखदूमा मासूमा कुम बीबी सलवातुल्लाह अलैहा के सेन अक़दस में जो मुजतहिद नमाज पढ़ाते थे, आयतुल्लाह शहाबुद्दीन नजफी अल मरअशी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये मिंबर गवाह है। झूठ मुझे बोलना नहीं आता, अगर झूठ बोलूं तो मालिक मुझे पूछे। खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो मुजतहिद जब हरम में मगरबैन की नमाज पढ़ाने आते थे तो स्याह लिबास में आते थे। हाँ, और पूरे उलमाए कराम, पूरे पाकिस्तान के जो भी फाजिल कुम, सब उस वक्त सेन अक़दस में जमा होते थे और सारे उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ते थे। और वो पहले आकर बीबी मासूमा कुम के सेन अक़दस का जो बाहर का दरवाज़ा है उसका बोसा लेते थे, और बोसा लेकर कहते थे, जब लोग कहते थे आप बुजुर्ग हैं, घर नमाज पढ़ लिया करें या ना पढ़ा करें, घर पढ़ लिया करें, तो वो कहा करते थे, मैं इसलिए हरम में आता हूं कि मासूमा मेरी गवाह रहे, मासूमा मेरी गवाह रहे कि मैं उनके हरम में आकर नमाज पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ। तो आगा सैयद शहाबुद्दीन नजफी अल मरअशी खतीब मासूमा कुम हरम, उनकी मज़ार भी बीबी के हरम में है। दरूद पढ़ें बावाज़े बुलंद। बस मशहूर मारूफ आयत पढ़ी है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। हाँ, अच्छी बात जहाँ से मिले उसको ले लो। और मौला फरमाते हैं, शहंशाह अंबिया फरमाते हैं कि हिकमत व दानाई मोमिन का छुपा हुआ ख़जाना है, जो जहाँ से भी मिले वो ले लो। और जिस चीज़ का इल्म ना हो उसके मुतल्लिक उसका इनकार नहीं करना चाहिए, जिस चीज़ का इल्म ना हो उसका इनकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर तहकीक करनी चाहिए। और 3 किस्म के लोग जो हैं वो मज़हब तब्दील करते हैं। एक तहकीकी होते हैं जो तहकीक करके तब्दील करते हैं, एक लालच में मज़हब तब्दील करते हैं, एक खौफ से मज़हब तब्दील करते हैं। जो तहकीकी होता है उसके सर पे चाहे तलवार चल जाए वो मज़हब नहीं छोड़ता। और जो दौलत के लिए मज़हब तब्दील करता है, जब दौलत बंद हुई वो वापस पलट गया। और जो खौफ से मज़हब तब्दील करता है, जब खौफ हट गया फिर वो उसी मज़हब में चला गया। और जिन्होंने फतह मक्का के वक्त कलमा पढ़ा था उन्होंने खौफ से कलमा पढ़ा था। उन्होंने तहकीक से नहीं पढ़ा था, खौफ से कलमा पढ़ा था। और हिकमत व दानाई मोमिन का वो खजाना है, जहाँ से मिले अच्छी बात, जहाँ से मिले ले लो। मेरे छठे मौला इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम कि हमारे फ़ज़ाइल के मुतल्लिक जब तुम्हें कोई फरमान मिले तो उसकी तस्दीक ना करो। हमारी इज़्ज़त व अज़मत के मुतल्लिक, हमारी शान के मुतल्लिक, हमारे फ़ज़ाइल के मुतल्लिक अगर तुम्हें कोई फरमान मिले हमारा, तो उसकी तहकीक ना करो, उसके मुतल्लिक पूछो ना, बल्कि अमन्ना व सद्दक़ना कबूल कर। और मौला फरमाते हैं दूसरी बात, अगर तुम्हारा ज़र्फ नहीं है, तुम कबूल नहीं कर सकते, तो फिर वो हमारी चीज़ हमारी तरफ लौटा दो कि हम इसे का ना इनकार करते हैं ना इकरार करते हैं। मालिकों की चीज़ मालिक जाने। और मौला फरमाते हैं कि अगर तुम इनकार भी नहीं करते, तुम ये मानते भी नहीं हो, लौटाते भी नहीं हो, और उसका इनकार करते हो, उसका इनकार करते हो, तो उस इनकार की अल्लाह तुमको सजा देगा। वो सजा क्या? कि जैसे जैसे तुम हमारे फजाइल के मुनकिर होते जाओगे, तुम्हारे दिलों से हमारी मोहब्बत निकलती जाएगी।
तुम्हारे दिलों से हमारी मोहब्बत निकलती जाएगी। हाँ, बहुत कुछ हो रहा है, मालिक करम फरमाए। हाँ, कुछ हम बयान नहीं कर सकते। हाँ, इस वक्त तो इस आशूरा पे तो दिखाए गए हैं कि खून जंजीर जनी नहीं करनी चाहिए, खून मरीजों को देना चाहिए। खून की जंजीर जनी नहीं, और खून मरीजों को देते हुए दिखाए गए हैं कि लोग खून दे रहे हैं। कायल किया जा रहा है कि जंजीर जनी छोड़ दो, मरीजों को खून दो। समझ आई ना? हाँ, अगर ऐसा दरूद पढ़े बावाज़े बुलंद, मगर ये जंजीर जनी वो खून नजस रहता है, जो खून तुम मरीजों को देते हो वो नजस रहता है। ये जो जंजीर मारते हो ये नजराना अकीदत है। और नजराना अकीदत नजस चीज का नहीं होता। जो चीज इसमें शामिल हो जाए, इनके साथ शामिल हो जाए, वो खुद भी पाक हैं, पाक कर भी देते हैं। मौला करीम करबला का तमाम असहाबे बावफा का खून अपने लिबास पे लगाकर आखिरी सजदा करके बता देते हैं कि जो करबला वालों के साथ अपना खून शरीक करते हैं वो खून नजिस नहीं होता बल्कि पाक होता है। समझ आई? नारे तकबीर, जनाब जॉन का खून, जनाब हबीब इब्ने मुजाहिर का खून, जनाब मुस्लिम औसजा का खून, समझ आई ना? शोहदाए करबला का खून, फिर मौला का आखिरी सजदा, जिसके मुतल्लिक इतना है कि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कह दिया, मेरे ज़हन में तो ये शायद किसी के इस्लाम के दामन में, बस इसके सवा क्या है, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदाए शब्बीरी। दरूद पढ़ें बावाज़े बुलंद। तो मेरे मोहतरम सामीन, अच्छी चीज़, प्रोग्राम तो यही था कि मौला करीम करबला की ज़ात पाक की अज़मत बयान की जाए, मगर मेरे भाई ने, दोस्त ने कहा नहीं, एक चीज़ की बहुत कमी है। करबला में तो ये मौला का तज़किरा तो सारा मुहर्रम होता है, मगर सिबते अकबर का तज़किरा नहीं होता। और उसके मुतल्लिक़ आम अफ़वाहें भी हैं कि ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़्यादा मानते हैं, मौला हसन अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, उनकी बात नहीं करते। तो मैं आज मिंबर पे कह रहा हूँ, कौन कहता है मौला हसन अलैहिस्सलाम को हम नहीं मानते? सुनो, जो मौला हसन अलैहिस्सलाम को दूसरा इमाम नहीं मानता वो काफिर है, बेदीन है, जहन्नमी है। जो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम को नहीं मानता दूसरा इमाम, वो बेदीन है, वो काफिर है, वो जहन्नमी है। अगर मौला इमाम हसन को हम ना माने तो हमें दूसरा इमाम नहीं मिलता। पंजतन पाक में चौथा पाक नहीं मिलता, 14 मासूमीन में 7वां मासूम नहीं मिलता। समझ आई ना? अगर हम मौला इमाम, जिस तरह हम मौला कायनात मौला अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को ओलिल अम्र मानते हैं, वली मानते हैं, कायनात पर उनका तसर्रुफ मानते हैं, इसी तरह मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को ओलिल अम्र मानते हैं, कायनात पर तसर्रुफ इनका मानते हैं, वली मानते हैं। और याद रखो, मौला हसन अलैहिस्सलाम वो बाअज़मत हस्ती है जिसकी रियाया में 10 साल इमाम हुसैन जैसी हस्ती रह गई हो। समझ आ रही है? हाँ, जिसकी रियाया में,
ہاں مولا حسین جیسی ہستی رہ گئی ہو جن کے دور اقتدار میں جن کا حکم مولا حسین علیہ السلام پر واجب ہے، ماننا واجب ہے۔ کریم بھائی ایسے کرو ماننا پڑے گا، کریم بھائی ایسے کرو ماننا پڑے گا۔ اگر مولا کہے کہ اٹھ کھڑا ہو تو اٹھ کھڑیں گے، اگر مولا کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں گے۔ صلح اور جنگ کی بات نہیں، ایک بہت اچھا زمانہ یہ سبق لے سیدہ کے دل کے ٹکڑوں سے کہاں پر صلح ہوتی ہے، کہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ درود پڑھیں بآواز بلند۔ تو اسی لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ سمجھ آئی نا؟ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ تو میرے محترم سامعین، اطیع اللہ پر اختلاف نہ ہوا، سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اطیع الرسول پر اختلاف نہ ہوا، سب نے پڑھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اختلاف ہوا تو اولی الامر پر اختلاف ہوا۔ کسی نے کہا بادشاہ وقت اولی الامر ہے، کسی نے کہا حاکم وقت اولی الامر ہے، کسی نے کہا کوئی اولی الامر ہے، کسی نے کسی کو کہا۔ سمجھ آئی نا؟ تعویلات کیے گئے اولی الامر کی، مگر یہ نہیں سوچا کہ جس کی اطاعت رسول کی اطاعت کی طرح واجب ہے، وہ اولی الامر بھی وہی ہوگا جو نبی نہ ہو، نبی جیسا ضرور ہو۔ نبی جیسا ضرور ہو۔ اگر نبی عالم الغیب تو وہ عالم الغیب، نبی حاضر ناظر تو وہ حاضر ناظر۔ اگر نبی کہے کن تو نبیًا آدم و بین الماء والتین، اولی الامر بھی ایسا ہونا چاہیے جو کھڑ کے کہے کن تو ولیًا آدم و بین الماء والتین۔ سمجھ آئی نا؟ اگر آپ اس وقت نبی تھے تو ہم اس وقت ولی تھے۔ اولی الامر عام نہیں۔ جب میرے مولا سبط اکبر علیہ السلام نے، شہزادہ امن نے، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس اولی الامر کی وضاحت کی، کہاں کی؟ بادشاہ روم کے دربار میں کی۔ بادشاہ روم کے دربار میں جب مسلمانوں کے دو گروپ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، مسلمانوں میں لڑائی شروع ہو گئی، یار کافر اور مسلمان کی لڑائی میں حق و باطل کا پتہ چل جاتا ہے، مگر جب دونوں آپس میں لڑ رہے ہوں تو اس وقت حق و باطل کا پتہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جناب اس مقام پر جناب زہیر ابن کین شہیر شہدائے کربلا میں سے، وہ بھی اس جگہ تھڑک گئے تھے۔ پہلے مقام پر تھڑکے، دوسرے مقام پہ تھڑکے۔ انہوں نے کہا میں نے عزم کیا تھا کہ یہ بہت بڑے تاجر بھی تھے کوفہ کے، اور بڑے دلیر اور شجاع بہادر تھے، جنگ بڑی لڑتے تھے شہنشاہ انبیاء کے ساتھ بھی، مگر جب تیسری جنگ، جب مسلمان، درود پڑھیں بآواز بلند، تو جب امیر کائنات کے دور و خلافت میں مسلمانوں میں لڑائی شروع، انہوں نے کہا میں نے عہد کیا تھا میں کافروں پر تلوار اٹھاؤں گا، میں مسلمانوں پہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اب دونوں مسلمان لڑ رہے ہیں، میں نہیں اٹھاتا، ادھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ادھر بھی لا الہ الا اللہ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ادھر بھی یہ شہدائے کربلا کا ذکر بھی اس میں جناب زہیر ابن کین کہا گیا، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ادھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہ اس نے امیر کائنات کا ساتھ دیا، نہ حاکم شام کا ساتھ دیا۔ جناب زہیر ابن کین نے بے وفا، امیر کائنات کے بے وفا، سمجھ آئی، نہیں ساتھ دیا، نہ جمل میں، نہ صفین میں، نہ حنین میں، سمجھ آئی، نہ نہروان میں نہیں ساتھ دیا۔ پھر مولا سبط اکبر کا بھی ساتھ نہیں دیا کہ میں نے جو ہے مسلمانوں پر تلوار نہیں اٹھانی، دونوں طرف سے مسلمان لڑ رہے ہیں، ادھر بھی نمازی، ادھر بھی نمازی، ادھر بھی روزے دار، ادھر بھی روزے دار، یہاں حق ڈھونڈنے کا مزہ آتا ہے۔ ہاں، جب
जब हक और बातिल जो है मिल जाएं, हक और बातिल को अलग, समझ आ रही ना मेरी बात की? दुरूद पढ़ें बावाज़े बुलंद। जब मौला हज के एहराम तोड़कर वापिस आए तो ये दूर दूर था कहीं करीम करबला मुझे अपनी नुसरत के लिए ना बुला लें। तो मौला ने शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ ज़ुहैर इब्न कैन को लेकर आओ, अब मैंने उसे नुसरत की दावत देनी है। तो जनाब शहजादा पाक गए और इतला देकर आए। तो इसने कहा मैंने जो अहद किया है, मैंने इनके बाबा का साथ नहीं दिया, इनके भाई का साथ नहीं दिया, ये मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैं इनकी नुसरत नहीं करूंगा। वो भी कलमा पढ़ने वाले, हाफिज कारी, ये भी कलमा पढ़ने वाले, उधर भी झंडा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इधर समझ आई ना? उधर कोई गैर नहीं थे, बज़ाहिर अपने थे, रूप अपनों का धारा हुआ था। इसीलिए तो हजरत सुल्तान उल आरिफीन आपके इलाके के हजरत सुल्तान बाहू ने कह दिया जेकर दीन इलम विच हुंदा सर नेज़े क्यों चढ़दे हो, 18,000 जो आलिम आहा अगे हुसैन दे मरदे हो। जे कर मंदे बैयत रसूली तंबू खैमे क्यों जलदे हो, जे मुलाजा सरवरदा कर दे पानी क्यों बंद कर दे हो। समझ आई ना? तो ये थे मौला करीम करबला ने बुलाया, बीवी ने कहा जाओ तो सही, जाओ तो सही। मौला ने मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, औरत निस्फ ईमान होता है शौहर का। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो थुड़काने वाली होती हैं, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो जोश दिलाने वाली होती हैं। अपना किरदार जब हक का पता चल जाए फिर किसी चीज़ की परवाह ना किया करो। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर की ज़ौजा की सीरत पर अमल करते हुए अपने खामदों को, अपने बच्चों को, करबला वाली औरतों की सीरत पर अमल करते हुए अपने बच्चों को, अपने खामदों को, अपने भाइयों को फिर इमाम वक्त पर कुर्बान कर दिया करो। एक एक बात से पूरी बातें निकल रही हैं मगर मैं छोड़ रहा हूँ, अपने मकसद की तरफ आ रहा हूँ। तो ये बीवी ने कहा और मौला करीम करबला की बारगाह में आए तो मेरे मौला ने कहा ऐ ज़ुहैर इब्न कैन भाई तुम कहाँ दूर दूर हो, तुम्हारा नाम तो शोहदाए करबला की बारे दीगर बावाज़े बुलंद सलवात दरूद पढ़ें बावाज़े बुलंद। बादशाह जनाब अबू तालिब बुलंद तर सलावत अल्लाह। तुम्हारा नाम तो शोहदाए करबला की लिस्ट में है। मोजज़ा दिखाया और फिर बीवी को कहा अब हम तुम्हें तलाक़े आशिकाना देते हैं। देखो दो इमामों का बेवफा, वक्त वाले का वफादार, पिछली खताएं मुआफ और वफादार बन गया। और कोई ऐसे भी थे जो दो इमामों के वफादार थे मगर वक्त वाले के बेवफा हो गए, पिछली वफा बेवफाई में बदल गई। तो इसीलिए यहाँ सबक है इन दो वाक़ियात से कि वक्त वाले के वफादार बनो। और हमारे वक्त वाला हमारे वक्त का मालिक है, इमाम ज़माना जिनकी मार्फत के बगैर दरूद पढ़ें बावाज़े बुलंद। दरूद पढ़ें बावाज़े बुलंद।
جن کی معرفت درود پڑھیں باواز بلند بارے دیگر باواز بلند صلوات جن کی معرفت کے بغیر جاہلیت کی موت مماتا ولم یعرف امام زمانے. بس میرے محترم سامعین، جب دو گروپوں میں لڑائی ہوئی، بادشاہ روم کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے دو گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں، اس نے تحقیق کے لیے دونوں میں سے ایک ایک نمائندہ مانگا کہ دیکھوں حق کس کے پاس ہے اور باطل پر کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. تو اس پر درود پڑھیں باواز بلند. بارے دیگر باواز بلند صلوات. درود پڑھیں باواز بلند صلی اللہ علیہ محمد. تو دونوں میں سے ایک ایک نمائندہ مانگا. مولا امیر کائنات علیہ السلام کی طرف سے امام امن سبت اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اور حاکم شام کی طرف سے اس کا ناخلف بیٹا کچھ علماء کے ساتھ گیا، بظاہر عالموں کے ساتھ گیا. بس لمبی بات نہیں کرتا. اس پر مولا سبت اکبر مولا امام حسن مجتبی گئے تو انہوں نے کہا، بادشاہ روم کے پاس پہنچے تو کہا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یہودی نہیں بنایا، عیسائی نہیں بنایا، نصرانی نہیں بنایا، مجوسی نہیں بنایا، بلکہ پکا مسلمان بنایا ہے. اور جب حاکم شام کا بیٹا گیا، اس نے جا کر بادشاہ روم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. سمجھ آئی نا؟ تو میرے محترم سامعین، بس لمبی چوڑی بات نہیں، اس نے کہا سبت اکبر سے، مولا امام امن علیہ السلام سے کہ آقا یہ بتائیے، سوالات بہت تھے، وہ جواب نہیں دیتا، اپنے مدعا کا جواب دیتا ہوں کہ مولا یہ بتائیے وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پہ حاوی ہیں، ساخت ہیں. تو میرے مولا نے فرمایا، سن لے بادشاہ، سخت سے سخت ہے پتھر، پتھر سے ساخت ہے لوہا جو پتھر کو بھی چیر دیتا ہے، لوہے سے ساخت ہے آگ جو لوہے کو بھی نرم کرتی ہے، آگ سے ساخت ہے پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، پانی سے ساخت ہے بادل جو پانی کو اٹھا کر کبھی اس ملک میں جاتا ہے، کبھی اس ملک میں جاتا ہے، کبھی اس ملک میں جاتا ہے. اور بادل سے ساخت ہے ہوا جو بادل کو بھی. باپ بیٹا کے درود پڑھیں باواز بلند. پہلے سے مجلس اندھیرے میں ہونا تو عادت ہوتی ہے، جب آنا جانا ہو جائے تو پھر مجلس جو ہے وہ بڑی وہ ہوتی ہے تو ڈسٹرب ہوتی ہے، پھر وہ ذکر پاک میں فرق آ جاتا ہے. اگر اندھیرے میں ہو تو ذہنی طور پر آدمی بیٹھا ہوتا ہے، پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا رہتا ہے، سننے والے کو بھی مزہ آتا رہتا ہے. جب بجلی آتی جاتی رہے تو پھر ڈسٹربنگ ہوتی ہے. تو اس لیے برائے مہربانی یہ 9 بجے سے چلا دیا کریں جنریٹر، تاکہ اس کی پریکٹس بھی ہوتی رہے اور پھر مجلس تک صحیح سلسلہ چلے. درود پڑھیں باواز بلند. بارے دیگر باواز بلند صلوات.
تو یہاں تک ہوا تک ایک فرمان میرے مولا کائنات کا بھی ہے، ہوا تک دونوں باپ بیٹوں کا فرمان ایک ہی ہے۔ ہوا سے آگے پھر باپ نے اور توجیہ بتائی ہے، امیر کائنات مولا نے، اور مولا سبت اکبر نے اور توجیہ بتائی ہے۔ تو یہاں پر آ کر میرے مولا فرماتے ہیں، پہلے مولا امیر المومنین کی توجیہ سنا دوں آپ کی محبت کے لیے۔ تو مولا نے ایک جگہ وضاحت کرتے ہوئے یہ بتاتے ہوئے کہ ہوا سے ساخت ہے انسان، ہوا سے ساخت ہے انسان، جو ہوا کو بند بھی کر سکتا ہے، ہوا پیدا بھی کر سکتا ہے۔ اور انسان سے ساخت ہے نشہ، جو انسان پر بھی طاری ہو جاتا ہے۔ اور نشے سے ساخت ہے ہم اور غم، جو انسان کے نشے کو بھی اڑا دیتی ہے۔ اور ہم ہیں کلو ہم و غم سا یجنی، تو یہاں تک تو مولا امیر کائنات، ادھر مولا صدیق اکبر نے فرمایا ہوا سے ساخت ہے فرشتہ جو ہوا کو بھی روک دیتا ہے، فرشتے سے ساخت ہے موت جو فرشتے کو بھی آ جاتی ہے، اور موت سے ساخت ہے امر ربی، اگر اللہ کا حکم ہو جائے تو موت بھی ٹل جاتی ہے۔ اور فرمایا بادشاہ سن، ہم ہیں اولی الامر، ہم ہیں اولی الامر۔ تو اولی الامر وہ ہوتا ہے جو آگ پر بھی کنٹرول کر لے، جو ہوا پر بھی کنٹرول کر لے۔ سورۃ روم کی آیت ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے رسول یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، ان سے کہو روح ہے امر ربی، اللہ کا حکم ہے، اور ہم ہیں اولی الامر، جس کا روح پہ بھی کنٹرول ہو، فرشتوں پر بھی کنٹرول ہو، جس کا آگ پر بھی کنٹرول ہو، لوہے پر بھی کنٹرول ہو۔ بلکہ میرے مولا صدیق اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے، کسی نے کہا مولا آپ کے بابا بھی بہت بڑے دعویٰ کرتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے دنیا والو جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ سمجھ آئی؟ تو یہ صرف عظمت میرے مولا علی کو ہے، وگرنہ جاننے والے تو سارے تھے۔ سلونی سلونی کا دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا، شہنشاہ انبیاء نے منبر نبوت پر نہیں کیا، باقی کسی آئمہ نے نہیں کیا۔ جب بھی کہتے ہو صاحب منبر سلونی تو فوراً ذہن میں مولا امیر کائنات آ جاتے ہیں۔ تو سلونی سلونی کا دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا، آپ کر رہے ہیں دعویٰ، تو آپ کے بابا نے کیا، اور آپ بھی بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم ملک پر ہیں، تو آپ حاکم شام کو فنا کیوں نہیں کر دیتے؟ حاکم شام کو اپنے معجزے سے ایجاز سے ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ کہا ہم مجبور نہیں ہیں، ہم اللہ کی مرضی پر مامور ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو مشرق کو مغرب کر دیں، شمال کو جنوب کر دیں، زمین کو آسمان کر دیں، آسمان کو زمین کر دیں، مرد کو عورت کر دیں، عورت کو مرد کر دیں۔ سمجھ آئی؟ جب یہ میرے صدیق اکبر مولا نے فرمایا کہ مرد کو عورت کر دیں، عورت کو مرد کر دیں، تو ایک شامی بیٹھا تھا، استغفار استغفار، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی نا، جب ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ تو اللہ کر سکتا ہے، بھئی اللہ کا اور ان کا گھر علیحدہ تھوڑا ہے۔ انہوں نے اللہ سے اپنا گھر نہیں بچایا، اللہ نے ان سے نہیں بچایا۔ اللہ ان کے گھر کا مالک، یہ اللہ کے گھر کے مالک۔ یا تو بتاؤ کہ انہوں نے کوئی چیز اللہ سے بچائی ہو۔ اللہ ان کے گھر کا مالک، یہ اللہ کے گھر کے مالک، ان سے اللہ نے کچھ بچایا نہیں، بلکہ اللہ کی صفات کے مظہر یہ ہیں۔ اللہ کی صفات کے ظہور ان سے ہوتا ہے۔
یہ اللہ خالق، اللہ کے ہر دعوے کی دلیل یہ ہے، اللہ کے ہر دعوے کی دلیل یہ ہے، میں خالق۔ کیسے خالق؟ انہوں نے خلق کر کے بتایا، ایسے خالق۔ اللہ رازق، کیسے رازق؟ انہوں نے رزق دے کر بتایا، ایسے رازق۔ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ جی یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مردوں کو زندہ تو ان کے غلام کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ باتوں میں بات آ گئی کہ خم غدیر کے دن سب سے پہلے جنہوں نے مولا امیر المومنین کی بیعت کی ہے وہ 4 فرشتے ہیں، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، جبرائیل، اور نظام کائنات یہ فرشتے چلاتے ہیں۔ جن کے نوکر فرشتے نظام کائنات چلاتے ہوں وہ خود کیا ہوں گے؟ ہاں تو میرے محترم سامعین، انہوں نے کہا ایسے ہی یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ کو کسی نے آتے ہوئے دیکھا؟ اللہ کو کسی نے لڑتے ہوئے دیکھا؟ اللہ کو تو اپنے بندوں کے کچھ بندوں کے ایسے کام پسند آئے، بندوں کے کیا؟ قرآن میں آپ ناقۃ اللہ سمجھتے ہو؟ ناقۃ اللہ کس کو کہا گیا؟ ناقۃ اللہ بتائیں؟ اونٹنی۔ کون سی اونٹنی؟ جناب صالح نبی کی اونٹنی۔ بتاؤ اللہ اسے گھاس ڈالتا تھا؟ اللہ اس پر بیٹھتا تھا؟ مگر تھی اونٹنی صالح نبی کی، مشہور ہو گئی ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ تو اللہ کو تو ایسے کام پر درود پڑھیں باواز ہے۔ سورۃ ضحیٰ پڑھیں۔ اے رسول تو یتیم تھا، ہم نے سرپرستی دی کس نے؟ حضرت ابو طالب نے۔ حضرت ابو طالب کا کام ایسا اچھا لگا کہ اللہ نے اپنے ساتھ منسوب کر لیا۔ ہم نے تمہیں غنی کیا۔ دولت کس کی تھی؟ ملکۃ العرب بی بی کی۔ اس کا کام ایسا اچھا لگا کہ اللہ نے کہا ہم نے۔ تو میرے محترم سامعین، بس بات یہ ہے کہ اس نے کہا یہ کام تو اللہ کے ہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بس یہ کہنا تھا۔ رحمت کل کے رحمت کل نواسے کو، سبت اکبر کو، شہزادہ امن کو جلال آ گیا، فوراً کا او بے شرم عورت، تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم مردوں کے مجمع میں بیٹھی ہے؟ بس جیسے ہی کہا بے شرم عورت، پہلے تھا پھر تھی، پہلے تھا پھر تھی، پہلے مذکر تھا پھر مؤنث بن گئی۔ دیکھ میرے مولا کا نظام، جب یہ دیکھا نا کہ یہ عورت بن گئی ہے، کہا فرمایا گھبرا نہیں، گھر جا، تیری عورت کو ہم نے مرد بنا دیا ہے۔ اب حاکم محکوم ہو گیا، محکوم حاکم بن گیا۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ دونوں، پھر ان میں سے ایک بچہ ہوا، ہاں مخنث، پھر ان دونوں نے آ کر معافی مانگی کہ مولا ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو پھر میرے مولا نے مرد کو مرد بنا دیا، عورت کو عورت بنا دیا۔ یہ ہے اولی الامر۔ اولی الامر حاکم وقت نہیں، اسی اولی الامر کی جو ہے عنوان بنا کر 18,000 علماء نے قتل کا فتویٰ دیا۔ مولا کریم کربلا کا سب سے پہلے فتویٰ قاضی شرح نے دیا، 1,00,000 درہم لیا اور مولا کے قتل کا فتویٰ دیا۔ تو یہ اولی الامر حاکم وقت نہیں، بادشاہ وقت نہیں۔ اگر اولی الامر بادشاہ وقت ہو تو ہر ملک کی اپوزیشن جو ہے وہ قرآن کی مخالف،
समझ आई? तो ओलिल अम्र वो होता है जिसे अल्लाह बनाए, नबी हाथ पकड़ के दिखाए। हम हर किसी को ओलिल अम्र नहीं मानते। अगर अपनी मर्जी से ओलिल अम्र मानना होता तो वफा के किरदगार को मान लेते। और इसका मतलब ये नहीं है कि वफा के किरदगार में था कुछ नहीं। एक अजीम नुक्ता बयान करने लगा हूँ। हुकूमत ऐलान करती है कि इतने टीचरों की ज़रूरत है, तालीम बीए पास हो, तो हुकूमत के पास होती हैं 20 सीटें, आदमी पहुंच गया 200, तो हुकूमत ने तो 20 ही रखने हैं ना, 200 तो नहीं रख सकती। मैरिट पर तो सब पूरे हैं। इसी तरह पाक खानदान में मैरिट पर सब पूरे थे, अल्लाह के पास सीटें 12 थी। समझ आई? हैदरी मैरिट पर जनाबे मुस्लिम बिन अकील भी पूरे, मैरिट पर मौला गाजी भी पूरे, मैरिट पर जनाबे मोहम्मद हनफिया भी पूरे थे ना कि जनाबे मुस्लिम कूफा में नायब बनकर गए। जनाबे मोहम्मद हनफिया को मौला सैयद साजिदीन ने जनाबे मुख्तार के मामले में अपना नायब बनाया। मैरिट था ना, नियाबत वही करता है जिसके पास असल की खसूसियात होती हैं। तो मेरे मोहतरम सामईन, मैरिट पर सब पूरे। सिब्ते अकबर शहजादा अमन सुलह कर ली जी, सुलह कर ली, तो मौला हसन ने सुलह कर ली। तवज्जो है ना? ये कहा जाता है सुलह कर ली हक। सुलह की दलील हक नहीं होता कि जिससे सुलह की जाए वो हक पर है। अगर वो हक पर है तो फिर मानो शहनशाह अंबिया ने काफिरों से सुलह की, तो क्या काफिर हक पर थे? नहीं, काफिर तो हक पर नहीं थे, काफिर तो हक पर नहीं थे। सुलह हुदैबिया रसूल ने दब के सुलह की, सिब्ते अकबर ने दबा कर सुलह की। तो सुलह में भी फर्क, दुनिया को ये पसंद नहीं करते थे, सवाल अलहदा थे। इसका सवाल था मुझे हुकूमत दे दे, उसका सवाल था मेरी बैयत का। समझ आई? इसने हुकूमत मांगी, मेरे मौला ने कहा जा, ये मेरे पाँव की ठोकर है, ले ले हुकूमत। हमें हुकूमत की ज़रूरत नहीं, बल्कि अमीर कायनात अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अपनी टूटी हुई जूती को मौला सी रहे थे, सीते हुए कहा, ऐ इब्ने अब्बास, जिस खिलाफत को तुम लिए फिर रहे ना, तुम्हारे लिए बहुत अहम है, उससे अफजल मेरी ये नालैन है। मुझे ज़रूरत नहीं, जिनको अल्लाह बनाकर भेजे उनको बंदों के बनाने की क्या जरूरत है? समझ आई? तो यही मेरे सिब्ते अकबर हुकूमत मांगी ये नहीं, बल्कि मेरे सिब्ते अकबर का वाकया, मौला सिब्ते अकबर अलैहिस्सलाम का, कि हाकिम शाम एक दफ़ा मदीना आया, और मदीना आया, लोग मिलने आए। इसने ऐलान किया कि जो भी आए ना मुझे मिलने, उन्हें 5000 दिरहम से लेकर 1 लाख दिरहम से नवाजा जाए। नवाजते रहे। आखिर में सिब्ते अकबर मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो इसने कहा, ऐ सैयदा का लाल, ऐ अमीर कायनात का लखते जिगर, तू इसलिए मुझे आखिर में मिलने आया है कि मेरी दौलत खत्म हो गई, मैं तुम्हें कम नवाजूंगा, तुम मेरा डंका बजाते फिरो कि हाकिम शाम बुखील है। मेरे मौला ने कहा, हमें दौलत की जरूरत ही नहीं, हम दुनिया को पसंद ही नहीं करते। हमारे बाबा ने दुनिया को तलाकें दी हैं, और तलाक किसको दी जाती है? जो नापसंद हो।
समझ आई ना? हमें दौलत की गर्ज नहीं। इसने फिर अपनी फूट दिखाने के लिए कहा, जितना इनाम मैं लोगों को दे चुका हूं उतना ही इनाम सिब्ते अकबर को दें। जब इसके गुलाम वो इनाम लेकर आए तो इसने मौला सिब्ते अकबर अलैहिस्सलाम को वो इनाम दिए, शहजादा अमन को, मौला इमाम हसन मुज्तबा को कहा ले लें, मुझे पहचाने, मैं जिगर खार का बेटा हूँ। अजाई ना, इशारे से चल रहा हूँ, मैं जिगर खार का बेटा हूँ, मैं जिगर खार का बेटा हूँ, ले लें। मौला उठने लगे, इसके एक गुलाम ने मौला की नालैन को सीधा कर दिया तो मेरे मौला ने कहा ये सारी दौलत तू ले ले और कहा हाकिम शाम मुझे पहचान, मैं खातून जन्नत का बेटा हूँ। जितनी दौलतें तू लौटाता है ये दौलतें तो हम नौकरों को दे देते हैं। तो मोहतरम मेरे मौला फरमाने लगे, तो ये इसने दुनिया मांगी, मौला ने दे दी, उसने बैयत मांगी थी। अगर ये भी बैयत मांगता तो मौला सिब्ते अकबर वही किरदार अदा करते जो मौला हुसैन ने किया था। बैयत नहीं करनी थी, हुकूमत मांगी, ले ले, तेरी हुकूमत की हमें ज़रूरत ही नहीं। हमें अल्लाह ने इसीलिए कहा गया है कि ज़माना ये सबक ले सैयदा के दिल के टुकड़ों से कहाँ पर सुलह होती है, कहाँ पर जंग होती है। और खतीब आले मोहम्मद अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब का बहुत अच्छा जुमला, ये जुमले का सवाब अल्लाह उनकी रूह को पहुँचाए, वो फरमाया करते थे कि ये मौला हसन अलैहिस्सलाम की सुलह का रिजल्ट था कि मौला करीम करबला को इतने 72 नासिर मिल गए। ये सुलह का रिजल्ट था कि मौला सिब्ते अकबर को 72 नासिर मिल गए, मददगार मिल गए। दरूद पढ़े बाबा से बुलंद। जब मेरे मौला ने जवाब दे दिया बादशाह रूम के दरबार में, तो इसने फिर तबरुकात का बक्सा उठवाया, उसमें से चंद तस्वीरें निकाली, पहले दिखाई हाकिम शाम के बेटे को। ये किसकी तस्वीर है? कलमी तस्वीर। और ये कलमी खताती तो बहुत पहले से होती है ना, कैमरे बाद में आए हैं। ये तो इब्ने बतूता के दौर में भी ये कलमी खताती होती थी, कलम से मुसव्वरी की जाती थी, तस्वीरें बनाई जाती थी। तो मेरे मोहतरम सामीन, तो ये कलमी खताती तो होती थी, तो इसीलिए तस्वीरें दिखाई। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अब सिब्ते अकबर के पास रखी तो मेरे मौला ने कहा बादशाह रूम तस्वीर के मुतल्लिक मैं बताऊं कि तस्वीर बताए मैं कौन हूं? मुझे पहचान, मैं उलिल अम्र हूं। तस्वीर बताए मैं कौन हूं कि ये खुद मैं बताऊं कि तस्वीर बताए? ईमान से बताओ, आपसे कोई अपने आपके परदादा की तस्वीर दिखाए और क्या ये किसकी तस्वीर है, आप बता दोगे कि ये हमारे परदादा हैं, हमारे दादा के दादा अबू हैं? जब देखा ही नहीं तो बताएंगे क्या? उसी चीज़ को बताएंगे ना जिसको देखा। घबरा तो नहीं गए? दरूद पढ़ें बाबा से बुलंद। तो देखा ही नहीं, अब जैसे ही तस्वीर दिखाई कहा ये हमसे ढका हुआ है, ये तो कल की बात है, ये आदम सफ़ीउल्लाह है, ये नूह नजीयुल्लाह है, ये इब्राहीम खलीलुल्लाह है, ये मूसा कलीमुल्लाह है, ये ईसा रूहुल्लाह है। अब मेरे मौला ने आखिरी तस्वीर देखी, रोना शुरू किया। बादशाह रूम ने कहा शहजादे रोते क्यों हो? कहा ये मेरे नाना की तस्वीर है, इसे देखकर मुझे नाना याद आ गए। अब पता चला आदम की तस्वीर वही बताता है जिसने आदम को देखा हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तस्वीर वही देखकर पहचानेगा जिसने जनाब नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना देखा हो। इसीलिए आपके पाक बाबा का इरशाद है कि मैंने सब अंबिया की छुप कर मदद की और शहनशाह अंबिया की जाहिर होकर मदद की।
मैं सब का नासिर बना और शहनशाह अंबिया का छुप के नासिर बना। दरूद पढ़ें बावाज़े बुलंद। फज़ाइल ही मेरे मौला के बहुत हैं। हाँ, ये मनसूस मिन अल्लाह कुल्ला शैन हसैन औफी इमाम मुबीन के मिज़दाक यौम नादु कुल्ला उनासिम बे इमाम हिम के मिज़दाक। ये मेरे मौला सिब्ते अकबर, यही मौला सिब्ते अकबर अलैहिस्सलाम बाबा अमीर कायनात की पास बैठे हैं और कह रहे हैं बाबा आपसे एक सवाल करूं, उस सवाल का जवाब देंगे? तो अमीर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस आखिरी जुमला फ़ज़ाइल का। तो अमीर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा बोलें, क्या बोलते हैं? तो उस वक्त सिब्ते अकबर ने कहा बाबा ये बताएं, जैसा नाना मुझे मिला है वैसा आपको मिला है? तो अमीर कायनात ने फरमाया, ओ मेरा लाल, इस अजमत में तू मुझसे बढ़ गया। मेरा नाना नेक था, मुत्तकी था, परहेजगार था, मगर नबियों का सरदार तो नहीं था। और दूसरा सवाल, नाना ये बाबा ये बताएं, जैसा मेरा बाबा है ऐसा आपका भी बाबा है? तो फिर मौला ने फरमाया, मेरा बाबा जनाब इमरान अलैहिस्सलाम मुहाफिज नबूवत, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुहाफिज नबूवत और तमाम दीन के सहारे, मगर वलियों के सरदार तो नहीं। मगर तेरा बाबा वो है जो वलियों का सरदार। फिर बताया, बाबा ये बताएं, जैसी मेरी अम्मा है वैसी आपकी अम्मा भी है? कहा मेरी अम्मा ने बेशक दीवारे काबा को शक किया, अंदर तशरीफ लाई, मगर तेरी अम्मा नहीं। तेरी अम्मा तो वो है जो मेरी माँ की भी सरदार है, अपनी माँ की भी सरदार है, अपने बाबा की माँ की भी सरदार है। सैयदतुन निसाइल आलमीन, मेरा लाल इस अजमत में भी तू मुझसे बढ़ गया है। तो मेरे मोहतरम सामीन, मालिक आपका इस मुकद्दस मकाम पर तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो वाक़या करबला में गो मौला सिब्ते अकबर मौजूद नहीं थे, मगर इनका हिस्सा पूरा करबला में था। एक तो मौला का लाल हिस्से में आया और एक 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक पाक बहन ने भाई हसन का किरदार अदा किया। तो मेरे मोहतरम सामीन, ये आमतौर पर सवाल उठता है, शहजादे कासिम की शादी मेरे मौला ने क्यों की? अल्लामा हाफिज किफ़ायत हुसैन बहुत बड़े आलिम गुजरे, अपने ज़माने के बहुत बड़े फ़िलासफ़र, और उनकी तकरीर को समझना बहुत मुश्किल होता था। उनसे सवाल किया गया यही कि मौला ने शहजादे कासिम की शादी करबला में क्यों की? क्या वो शादी करने गए थे? क्या वो जो आज सवाल होते हैं, गैरों की तो बात नहीं, जो बज़ाहिर अपने हैं वो सवाल करते हैं, शादी करने गए थे, क्यों शादी हुई? कोई शादी नहीं हुई, ये गलत बात है। ये किस लिए की? अगर उन्होंने शादी की तो हमारे लिए भी सुन्नत है, हम भी शादी करें। यही सवाल अल्लामा हाफिज किफ़ायत हुसैन मरहूम से जब पूछा गया कि ये शादी क्यों की, हुई है कि नहीं हुई, उन्होंने कहा हुई है। क्यों की? तो उन्होंने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब। अल्लामा हाफिज किफ़ायत हुसैन का तमाम जवानों के लिए दुरूद पढ़ें बावाज़े बुलंद। तो उन्होंने कहा दामाद का रिश्ता बहुत नाजुक रिश्ता होता है और दामाद का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता होता है, और दामाद कभी कभी बेटों से भी प्यारा लगने लग जाता है बेटी की वजह से। समझ आई ना? दामाद का रिश्ता बहुत प्यारा है। करबला में मेरे मौला के सब रिश्ते मौजूद थे, एक दामाद का रिश्ता नहीं था। तो मौला वो रिश्ता भी कुर्बान करना चाहते थे, इसलिए शहजादा कासिम का अक्द हुआ कि कल भतीजा भी हो और दामाद भी हो जो मैं राह खुदा में कुर्बान करूं।
समझ आई ना। और दूसरी बात ये खुलासे को 2 लफ्जों में कि शहजादे की शादी क्यों हुई, समझ आई ना। कि अरब में जंग बंदी के कानूनों में एक कानून ये था कि अगर एक कबीला जंग नहीं चाहता था, दूसरे कबीले के पास अपना एक रात का दुल्हा भेज देता था। तो दूसरे कबीले वाले कहते थे यार वो खुशियों वाला आ गया, अब इनकी खुशियां खराब नहीं करनी, अब शादी जो है वो अब मान लो जंग नहीं करनी। मौला ने हुज्जत तमाम करनी थी। इस हुज्जत तमाम करने के लिए मेरे मौला ने अक्द किया 3-4 हुज्जतें कि जवान ब्याया भेजना, शशमाहा मैदान में भेजना, बुजुर्ग भेजना, पर्देदार मस्तूर को भेजना। ये जंग बंदी के कानून थे। मेरे मौला ने सारे कानून अपनाए। 6 माह का शहजादा भी लेकर गए, एक रात का दूल्हा भी भेजा, 120 साल का जनाबे जौन भी भेजा या जनाबे मुस्लिम बिन औसजा। और पाक पर्दादार भी कहती रहीं कि देखो ना मार मेरी माँ ने चक्कियाँ पीस के पाला। हुज्जत के लिए मेरे मौला ने सारे गुर अपनाए कि कहीं ये मेरे खून से बाज आ जाएं, मगर नहीं आए खून से बाज। मोहतरम सामईन, मेरे मोहतरम अज़ादारों, बस नहीं आए बाज। मैदान करबला में खून का बाजार गर्म है। रात को अक्द किया और उस अक्द में मेहंदी, ये मेहंदी का तस्वर है ना, मेहंदी खुशी की अलामत है। मेहंदी जब भी किसी जगह भी हो, शादियाने, खुशियाँ, बहने भाई खुशियाँ मनाते हैं। एक मुहर्रम में मेहंदी निकलती है जो मातम के साथ निकलती है, जो बहनों के साथ निकलती है, जो गिरिया के साथ निकलती है। जब मेहंदी आती है मस्तूरात सर पे मातम करती हैं। जब मेहंदी आती है जवान दीवारों का सहारा ले लेकर रोते हैं। जब मेहंदी आती है बूढ़ों की पगड़ियां खुलकर गले में आ जाती हैं। एक मेहंदी ये है जो मातम के साथ क्यों आती है कि ये मेहंदी पानी से तर नहीं हुई, फाते शाम बीबी के आंसुओं से तर हुई। अज़ादारों, पानी तो था नहीं। जब मौला ने अक्द का इरादा किया कि शब आशूर मैंने अक्द करना है पाक लाल का, अज़ादारों फूफियों को, बहनों को बहुत आस होती है भाई की शादी हो, हम मेहंदी लगाएं। अली की बेटी सिद्दीक़ अकबर की पाक बहन भाई हसन का किरदार अदा कर रही थी। अब बेटे को मेहंदी लगानी थी ना, मेहंदी ली। अब भी जो ज़ायरीन करबला में जाते हैं, हुजरा उरूसी अब भी मौजूद है। इतनी मेहंदियां उस हुजरे में होती हैं कि अंदर पूरी नहीं आती, बाहर निकल रही होती हैं। करबला में वो हुजरा उरूसी जिसके मुतल्लिक साहिब मिफ्ताहुल जन्ना लिखते हैं, जब अक्द पढ़ा गया दुल्हा और दुल्हन को उस हुजरे में बिठाया गया तो दुल्हन ने कहा चचे जाया इतनी मुसीबत के वक्त में बाबा ने हमारा अक्द कर दिया, अब क्या प्रोग्राम है ये कहना था। दूल्हा उठा और दुल्हन से कहने लगा कि ये शादी जो हुई है ये जब हमारा कायम आएगा फिर हम इस शादी को मनाएंगे, फिर हम शादी को मनाएंगे। अब मैं नुसरत इमाम ज़माना के लिए जा रहा हूँ। अज़ादारों, दुल्हन रोती रह गई, दूल्हा चला गया। अज़ादारों, इसीलिए ये मेहंदी लेकर अली की बेटी खैमा के हुजरे में चली गई। मैंने रस्म मेहंदी करनी है, अपने बेटे को मेहंदी लगानी है। ऐ आंखों इतना बरसो कि ये मेहंदी तर हो जाए। अज़ादारों, रात को
अक्द हुआ, सुबह मौत ने बाजार गरम कर लिया। तमाम जा रहे हैं कि शहजादा कासिम की पाक अम्मा ने बुलाया, कासिम बेटा क्या मैदान में नहीं जाते? ओनो मोहम्मद के लाशें आ गए, तू माँ को सुरखरू नहीं करेगा, तू भी माँ की लाज रख ले। अज़ादारों ये कहना था कि तुम भी माँ की लाज रख ले। का क्या करूं, चचा इजाजत नहीं देते, आप मैं खैमा में बैठने नहीं देते। बताओ तो सही, हसन का यतीम कहाँ जाए? आजादारो जब ये कहा कि कहाँ जाए, कहा चचा इजाजत नहीं देते। कहा जब भी चचा के पास जाता हूँ, चचा मुझे मैदान में जाने दें, तो चचा उठकर कहते हैं तुम तो मेरे 2 घरों की निशानी हो, मेरे हसन भाई की निशानी हो, मेरी बेटी का सुहाग हो। तेरे जाने से मेरे 2 घर उजड़ेंगे, मेरे हसन भाई का दरवाजा भी बंद होगा और मेरी बेटी का सुहाग भी उजड़ जाएगा। आजादारों माँ ने कहा चलो तुम्हें मैं इजाजत लेकर देती हूँ। अब आगे शहजादा कासिम है, पीछे पीछे माँ है। अब जैसे मेरे मौला की नजर पड़ी, कुर्सी छूट गई। अब तो मेरा भाई हसन आ रहा है मुझसे इजाजत लेने। बस बीबी ने कुछ कहा नहीं, मेरे करीम आका ने कहा इजाजत दे दी। मैं मस्तूरात से विदा किया, घोड़े पे सवार हुए। आजादारों जिस तरह अलमदार करबला को मौला हुसैन की चुप खा गई, इस तरह इस दुल्हा को मौला अब्बास की चुप खा गई। अज़ादारों मैदान में गए, चचा सबक पढ़ा रहे हैं, उस्ताद सबक पढ़ा रहे हैं। हसन का लाल जंग कर रहा है, हसन का लाल जंग कर रहा है। कासिम बेटा दाएं हमला कर, बाएं हमला कर, आगे हमला कर। अरज़क नामी शामी को कत्ल किया, उसके बेटों को कत्ल किया। अब चचा सबक दे रहा है, इतने में करीम आका ने आकर कहा अब्बास मेरी नमाज का वक्त करीब है, अगर तू सबक देता रहा तो करबला का जो मकसद मैं लेना चाहता हूँ वो मकसद नहीं निकलेगा। अज़ादारों गाजी मौला चुप हुए। हसन मौला के लाल ने एक मर्तबा देखा, अलमदार करबला के दोनों हाथ कमर पे आए हुए हैं, खामोश हैं। फिर दूसरी मर्तबा देखा, चचा नहीं बोला। फिर तीसरी मर्तबा देखा, वफा का मालिक नहीं बोला। जब 3 मर्तबा देखा कि मुझे उस्ताद ने सबक पढ़ाना छोड़ दिया, अब कहा चचा अगर आपकी यही मर्जी बन गई है तो हमारी भी यही मर्जी है। इन्ना लिल्लाह कहकर तलवार को म्यान में डाला। अज़ादारों फिर चारों तरफ से हमला हो गया। बस इतनी आवाज आई कि घोड़े से गिरते हुए कहा चचा अदरिकनी। मेरे मौला के पहुंचने से पहले मशरिक के घोड़े मगरिब को, मगरिब के घोड़े मशरिक को, शिमाल के घोड़े जुनूब को, जुनूब के घोड़े शिमाल को भाग गए। अब मेरे करीम आका ने आकर मैदान में आवाज दी कासिम लाल कहाँ हो? अज़ादारों फिर एक जगह से नहीं पूरे मैदान से आवाज आई चचा मैं यहाँ, चचा मैं यहाँ, चचा मैं यहाँ, चचा मैं इस जगह। अज़ादारों ये देखना था। अब मेरे करीम करबला आका ने चादर को उतारा, जमीन पे बिछाया और मेरे मौला ने किसी जगह से हाथ नजर आया, चूमा और गठड़ी में रखा, किसी जगह से कोई टुकड़ा। अब मेरे मौला टुकड़े इकट्ठे कर रहे हैं कि इतने में मेरे मौला ने देखा कि एक नकाब पोश है जो रो भी रहे हैं और साथ साथ टुकड़े भी उठा रहे हैं। करीम आका ने कमर सीधी की और कहा इस आलम में गुर्बत में मुझ पर ये एहसान लगाने वाला कौन है? नकाब पोश ने नकाब उल्टा, का पहचानो बकिया से हसन आया हूँ, अपने बेटे की लाश के टुकड़े उठा।
आज़ादारो मेरे मौला करीम करबला ने कुर्बान जाऊं, जवान की लाश कैसे उठाई जाती है, या ऐसे उठाई जाती है या ऐसे उठाई जाती है। ये अजब लाश थी कि मेरे मौला ने उठाई, ऐसे उठाई, गठड़ी बनाई और कंधे पे रखी। आज़ादारो कंधे पे रखी, अब मेरे मौला लेकर चले जैसे शहजादियां देख रही थी। बेवाई जनाब हसन ने कहा, मौला बीबी मेरे बेटे ने वफा नहीं की, हर शहीद की लाश आई, मेरे बेटे की लाश करीम आका लेकर नहीं आ रहे। अब जैसे ही खेमा में दाखिल हुए, पहला सवाल भाविज ने किया, आका मेरे दूध ने वफा नहीं की। करीम करबला ने कहा, भाभी जैसे इन्होंने वफा की वैसे किसी ने नहीं की, लाश क्यों नहीं आई? मौला ने गठरी रख के कहा, ये है लाश जिसकी ना सिरांदी है ना पवांदी है। अब माँ के बैन बुलंद हुए, मेरा तो 13 साल का जवान था। आज़ादारो मेरे करीम आका ने कहा, भाभी बाकी सब खा के शिफा बन गई, जो मिला मैं ले आया। आज़ादारो मस्तूरात में बैन बुलंद हुए। अब क्या देखा, सिब्ते अकबर पाक मौला की पाक मलका, पाक बीबी, पाक बेवा एक टुकड़े को उठाती हैं और फिर रख देती हैं, दूसरा उठाती हैं फिर रख देती हैं। करीम करबला ने कहा, भाभी क्या ढूंढ रहे हैं? कहा, रुखसार ढूंढ रही हूँ कि लाल का बोसा ले सकूं, मगर मेरा लाल नहीं है। आज़ादारो इतने में देखा दुल्हन नजर नहीं आई। आज़ादारो अब दुल्हन को लाओ, अपने सेरे वालों के जनाजे पे आए। आखिरी जुमला मसाइब का। आज़ादारो दुल्हन को लाया गया। अब दुल्हन ने आकर क्या किया, एक ही जुमला कहा, ऐ मेरा सरताज मुझे ये बता दे कि मैं तेरी लाश पे रहूं या शाम की कैद निभाऊं। मातम हुसैन